Greetings to all dear students. Today I am going to discuss the detailed and point-wise summary of chapter 1, the last lesson of Flamingo book. I hope that after discussing this detailed and point-wise summary, you'll be able to get the gist of this chapter. Let's move to the detailed summary. The last lesson written by Alphonse Daudet is mainly about the longing to learn the mother tongue and love for it. Last lesson, it is written by Alphonse Daudet. It mainly focus about the desire, longing, it means yearn or desire to learn the mother tongue and love for it, and the affection, attachment for mother tongue. It has a sense of patriotism, and it has also shown that means how much we are patriotic taking our mother tongue, because it feel the sense of patriotism. The narrator was late for school. Now we are discussing the scene of the story from where this story starts. So the narrator was late for school in the morning, and he was a little scared for his French class as he had not taken it seriously and the teacher might ask questions on participles. So Mr. M. Hamel, he is a French teacher and he had assigned participle to prepare, and French, who is the narrator of this story, he was late for the school and he was scared for his French class as he had not prepared his assigned letter participles. So he was afraid of that. He wanted to skip school but still decided to attend it. Very first, when it is the usual habit of the student, when they are not prepared, they are not willing to go to the class. Same like French, he was not prepared and he was willing to skip the class. The narrator saw that there was a huge crowd in front of the bulletin board in the town hall, and when he was going to the school, he saw that there was a huge crowd at the bulletin board. Bulletin board means notice board. So notice board पर there was a huge crowd of people and they were watching something on the notice board. That bulletin board was the harbinger of the bad news for the last 2 years, and that notice board, that was the harbinger, that was the forerunner, or we can say that was the predecessor, means that brings, means all the bad news is displayed on that bulletin board from the last 2 years. All the information on lost wars and the other depressing news was put there. जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, जितने जो फ्रेंच पीपल थे एलिसिस और लोरेन के, उनके लिए जो भी नोटिस होती थी, दैट वाज गिवन ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड. और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब से उन लोगों ने ये वॉर लॉस्ट किया है, जो फ्रेंच प्रशियन वॉर था, जब से वो उसको लूज़ किए हैं, तो उसके बाद से जो प्रशियन पीपल हैं वो हमेशा जो है कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ भेजते रहते हैं उन लोगों को, और दैट इज़ पुट देयर, दैट इज़ मीन्स दैट इज़ गिवन देयर ओनली. The narrator notices that the school was disturbingly silent as compared to the general state of the school when it starts. When narrator reached the school, जब narrator स्कूल पहुंचा, then he noticed that the school was disturbingly silent, कि स्कूल में बहुत ज़्यादा साइलेंस था as compared to the general state of the school. जैसे कि जो एक जनरल स्टेट होता है स्कूल का, एक कॉमन एक जो सिचुएशन होती है उसके कंपेयर में, जैसे स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुल्ला बॉलिज्म या हम कह सकते हैं एक अप्रोर होता रहता है, तो स्कूल वॉज वेरी इन द पीस एंड सीरीन एटमॉस्फेयर, एंड इट वॉज वेरी astonishing for French. Generally, one could hear the recitation of the lessons and hustle and bustle of students around the school. और अक्सर क्या होता है कि anybody could hear the recitation, बच्चे जो है रिपीट करते रहते हैं चैप्टर्स को, और वहाँ पर वो टेबल रीड करते हैं, नंबर्स रीड करते हैं, तो एक रेसिटेशन में बहुत ही ज़्यादा साउंड होती है. एंड हसल एंड बसल मीन्स क्या होता है कि व्हेन दे मूव देयर डेस्क चेयर, तो दो साउंड्स ऑल्सो कम आउट ऑफ द स्कूल. तो बहुत ही हसल और बसल होता है स्कूल में, और बट ऑन दैट डे इट वॉज क्वाइट साइलेंट.
In fact, he was pretty accustomed to hide in the noise and reach his desk without getting noticed. और इनफैक्ट ये बहुत ही मतलब सामान्य था कि फ्रेंच जो है जब भी कभी लेट होता था तो इतनी ज़्यादा जो नॉइज़ होती रहती थी, इतना ज़्यादा मूवमेंट जो होता रहता था, उसी नॉइज़ में वो जो है ही वॉज प्रेटी एकस्टम्ड, वो एकदम उसका एडिक्ट हो चुका था टू हाइड इन द नॉइज़, कि वो उसी शोरगुल में छिप करके अपने डेस्क तक पहुंच जाता था विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, और उसको उसके टीचर नोटिस नहीं कर पाते थे. बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी, लेकिन आज के दिन उसे सबके सामने, अब आज लेट में उसे क्लास में एंटर करना होगा और सबके सामने से जाना होगा. ही वॉज क्वाइट ऑफरेड ऑफ द फ्रेंच क्लास एंड सिटिंग देयर बिफोर एवरीवन. वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था अपनी फ्रेंच क्लास को लेकर के, एंड क्योंकि सभी लोग क्लास में पहले से ही प्रेजेंट थे एंड ही वॉज लेट फॉर द क्लास, तो ही वॉज वेरी वरीड एंड ही वॉज वेरी ऑफरेड ऑफ दैट थिंग. M. Hamel, who was strict with the narrator in the past, asked him to sit down politely. M. Hamel, जो कि फ्रेंच से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने फ्रेंच से बहुत ही पोलाइटली कहा और उन्होंने उसको कमांड किया कि वो जाकर के अपने सीट पर बैठ जाए. French was confused as M. Hamel was in formal clothes that he wore on only prize days and inspection days. French, he was again shocked. He was confused that why M. Hamel was wearing his informal clothes which he used to wear on प्राइज डेज में, इंस्पेक्शन डेज में, स्कूल के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उन दिनों में वो पहनते थे अपने उस इनफॉर्मल क्लॉथ्स को, लेकिन आज वो पहने हुए हैं. तो इसको देख करके फ्रेंच जो है फिर से ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था. द एटमॉस्फियर वॉज एक्सट्रीमली सैड एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग सो सैड ऑन दैट डे एंड एवरीबडी वॉज साइलेंट ऑल्सो. The most astonishing thing was that the village elders were also sitting on the back benches of the class. और उस क्लास में सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग क्या था, सबसे ज़्यादा जो है जो शॉकिंग क्या था कि उस दिन जो गांव के जो एल्डर्स हैं, जो ग्रोन अप पीपल हैं, जो एडल्ट हैं, वो लोग भी क्लास में आकर के बैक बेंच पे बैठे हुए थे एंड दे वर ऑल्सो टेकिंग द क्लास. वो लोग भी क्लास ले रहे थे. एम हैमल क्वाइटली सैट ऑन हिज चेयर. उसके बाद एम हैमल जो है अपने चेयर पे आकर के बैठ जाते हैं क्वाइटली एंड ही स्पोक इन अ जेंटल एंड ग्रेव टोन. और बहुत ही जेंटल, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. और उन्होंने बताया कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेसन ऑफ हिज टीचिंग लाइफ. उनकी टीचिंग लाइफ का ये लास्ट लेसन रहेगा. एंड ही इन्फॉर्म्ड एवरी वन दैट एन ऑर्डर हैड बीन रिलीज्ड फ्रॉम बर्लिन. और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर जो है बर्लिन से आया हुआ है. जर्मन इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एलिसिस एंड लोरेन. और उस नोटिस में बताया गया कि जर्मन, अब से जर्मन ही सिर्फ एक ऐसी भाषा होगी जो एलिसिस और लोरेन में पढ़ाई जाएगी. हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल एंड द जर्मन टीचर विल ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे. और उन्होंने कहा कि ये आज उनकी लास्ट क्लास है स्कूल में और जो जर्मन टीचर है वो कल स्कूल जो है ज्वाइन करेगा और कल से जो है जर्मन वहाँ पर पढ़ाई जाएगी. There was a guilt somewhere in the narrator for not learning his lessons in French. अब जो है जो नरेटर फ्रेंच है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट था, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को दोषी मान रहा था कि उसने अपने लैंग्वेज को, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को उसने नहीं सीखा. इसके लिए वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दोषी मान रहा था. ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स. वो अपनी बुक को कभी पसंद नहीं करता था. ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़. उसको अपनी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही डिड नॉट लाइक हिज ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक्स. उसको अपनी ग्रामर और हिस्ट्री बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी. बट नाउ ही वॉज फैसिनेटेड बाई देम. लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट था, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था फॉर दोज बुक्स. ही स्टार्टेड टू लाइक एम हैमल एंड ही वॉज लाइकिंग द एम हैमल. ही वॉज लाइकिंग एम हैमल ऑल्सो. ही वॉज लाइकिंग हिज टीचर ऑल्सो. द थॉट दैट ही will not teach him from tomorrow made him forget about all his rulers. जब जैसे ही मिस्टर एम हैमल ने बताया कि कल से अब वो उसको नहीं पढ़ाएंगे, जैसे ही वो सुनता है ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज स्ट्रिक्टनेस, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उसको पनिश करते थे, उन सारी चीज़ों को वो भूल जाता है और उसको एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन होता है अपनी स्टडीज़ को लेकर के, अपने टीचर को लेकर के. ही फॉरगेट हाउ क्रेजी हिज टीचर वॉज. वो भूल जाता है कि उसके टीचर कितने ज़्यादा उस क्रेजी थे, कितना ज़्यादा उसको पनिश करते थे. इट वॉज हिज टर्न टू रिपीट द लेसन. ये अब ये फ्रेंच का जो है एक टर्न था कि अब उसे अपने सारे लेसन को रिपीट कर लेना चाहिए. बट ही गॉट कन्फ्यूज्ड एंड मिक्सड अप. अब लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका था एंड ही हैड अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड इन दोज इमोशन ही वॉज
filled up and he was mixed up with all those emotions. This time M. Hamel did not scold him. इस बार M. Hamel ने उसको scold नहीं किया. The people of Alesis did not generally give no importance to French. और वैसे ये एक जनरल हैबिट थी, सारे जितने भी लोग हैं एलिसिस और लोरेन के, दे डिड नॉट जनरली गिव नो एनी इंपॉर्टेंस टू दियर लैंग्वेज. अपनी मदर टंग को वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. एम हैमल शोड हिज कंसर्न, और एम हैमल ने भी ये कंसर्न अपना दिखाया कि मतलब यहाँ के लोग कितने ज़्यादा केयरलेस थे अबाउट दियर मदर टंग. दे इग्नोर्ड लर्निंग दियर ओन नेटिव लैंग्वेज, और वहाँ उन्होंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को, अपनी ही मदर टंग को किस तरह से इग्नोर किया है. इट वाज नॉट द केस ओनली विद फ्रेंच. ये फ्रेंच का ही केवल एक केस नहीं था कि फ्रेंच जो है अपने चैप्टर को प्रिपेयर करके नहीं आता था क्लास में और बहुत ही ज़्यादा केयरलेस रहता था. मेनी अदर्स वर ऑल्सो गिल्टी ऑफ नॉट लर्निंग फ्रेंच. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने फ्रेंच को नहीं सीखा था. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और एम हेमल के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, सबसे अच्छी भाषा है वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है. तो इसलिए वो फ्रेंच को बहुत ही अच्छी भाषा मानते हैं. That was the detailed summary. Now we are going to discuss the point-wise summary. Franz is afraid of going to school. When the scene of this story opens, then we found that Franz was getting late and he was also afraid of going to the school and he was planning to quit the class. वो ऐसा प्लान कर रहा था कि वो क्लास को क्विट कर दे. As weather was also protesting him, जैसे वेदर भी जो है उसको स्टॉप कर रहा था. वेदर was also stopping him to go to the school as he has not learned participle, और उसने participle भी लर्न नहीं किया था. He wants to enjoy beauty of nature, the bright sunshine, the birds chirping in the woods, Prussian soldiers drilling but resisted. And he wants to enjoy the beauty of nature because the weather was so pleasing. There was bright sunshine and the birds were also chirping in the woods, means in the forest the birds were chirping, and Prussian soldiers, they were drilling but resisted. The Prussian soldiers, they were practicing, they were doing the march past, so trumpet was also blowing there. So these all the things were stopping him to go to the school, but he resisted. लेकिन अपने आप को उसने रोका. It means he went to the school. Bulletin board. When he was going to the school, then he found means a crowd of people there, and bulletin board that covered all the bad news, lost battles, and the drafts and orders of the commanding officers, and wondered what it could be now the changes he noticed in the school. And he was wondered that what the changes is going to be happen in the school. He noticed that means something is going to be changed in the school. Instead of noisy classrooms, everything was as quiet as Sunday morning. And when he reached the school, then he found the classrooms or the school is quite calm. There was no noise, and it seems that today is Sunday. जैसे लग रहा था कोई holiday है, because there was no noise. कोई noise नहीं थी. The teacher does not scold him and told him very kindly to go to his seat. और क्लास में जो टीचर थे एम हेमल, यूजुअली जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज के दिन उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही जेंटली जो है फ्रेंच से कहा कि वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाए. द टीचर ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, और टीचर ने भी जो है बहुत ही एक अच्छा ड्रेस पहन रखा था, इनफॉर्मल ड्रेस पहना था, जो कि वो यूजुअली इंस्पेक्शन डे पे या जो रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, पीटीएम होता था, उन दिनों पे पहनते थे, तो वैसा उन्होंने ड्रेस पहन रखा था. Villagers occupying the last benches, and the class was also occupied by the grown up people, adult people, और वो भी जो है लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे. टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस दियर सॉलिडेरिटी विद फ्रांस. और वो सारे लोग इसलिए कलेक्ट हुए थे क्लास में क्योंकि 40 ईयर्स से, लास्ट 40 ईयर्स से मिस्टर एम हेमल वहाँ पर अपनी सिंसियर सर्विस दे रहे थे. एंड ही वॉज एजुकेटिंग देयर, वो सबको एजुकेट कर रहे थे. एंड दे वर ऑल्सो गैदर्ड देयर टू एक्सप्रेस दियर सॉलिडेरिटी विद फ्रांस, अपनी एक पेट्रोटिज्म को दिखाने के लिए कि उनको मदर टंग से कितना ज़्यादा अफेक्शन है, कितना वो लव करते हैं, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए दे वर गैदर्ड इन द क्लास. Hamel making the announcement that would be the last French lesson realizes that was what was put up on the bulletin board.
हैमेल ने भी एक अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये जो है उनका आज लास्ट उनकी फ्रेंच की क्लास होगी और यही चीज़ जो है बुलेटिन बोर्ड में, मतलब बुलेटिन बोर्ड में ये आया हुआ है, ये एक ऑर्डर आया हुआ है कि कल से जो है यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब से जो है वहाँ पर पढ़ाई नहीं जाएगी। फ्रेंच रियलाइजेज दैट ही डज़ नॉट नो हिज ओन मदर टंग। अब फ्रेंच को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी भाषा नहीं सीख पाया। Regretted why he had not taken his lessons seriously, and he was also regretting that why he had not taken his classes seriously। उसने अपनी क्लासेस को सीरियसली क्यों नहीं लिया, क्यों उसने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। He was now regretting it। Also realizes the reason why teacher was dressed in his Sunday best and villager sitting at the back। और उसके बाद फिर उसको ये भी रियलाइज़ हो गया, तो उसको ये भी पता चल गया कि क्यों जो है उसके टीचर आज एक संडे ड्रेस में है और क्यों विलेजर्स जो है गांव में जो गांव के विलेजर्स हैं वो क्यों पीछे बैक बेंच पे बैठे हुए हैं। ही ऑल्सो गॉट दैट। Hamel realizes that all three, the children, the parents, and he himself, are to be blamed for losing respect and regard for the mother tongue। अब हैमल को ये बात पता चल गया, ही realized that की मीन्स चिल्ड्रन मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और वो खुद भी इस चीज़ के लिए ब्लेम्ड हैं क्योंकि उन्होंने अपने मदर टंग को लेकर के उन्होंने बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं दिखाई एंड दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द मदर टंग। उनके लिए कोई मदर टंग को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई भी रिगार्ड नहीं था, कोई भी जो है एक अटैचमेंट नहीं रह गया था मदर टंग को लेकर के। उस समय जब उनको मतलब व्हेन दे वर फ्री, जब वो फ्री थे, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा केयरलेसली जो है चीज़ों को लिया। हैमल always keep the mother tongue close to your heart as it is the key to the prison of slavery। और एम हैमल ने ये लोगों को सजेशन भी दिया कि हमेशा अपने मदर टंग को आप अपने बहुत ही क्लोज रखिए और बिकॉज ये जो है दिस इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। ये आपको जो प्रिजन ऑफ स्लेवरी है उससे ही बचाने का काम करेगी मदर टंग। ये आपको यूनाइट करेगी व्हेन यू वुड हैव अ कॉमन लैंग्वेज। तो एक कंट्री के लिए पैट्रोटिज्म होगा, एक मतलब देशभक्ति होगी, तो ये एक दैट वुड बी द ड्राइविंग फैक्टर टू ब्रिंग द फ्रीडम इन द कंट्री। पॉइंट नंबर 13, एटमॉस्फेयर इन क्लास। क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, स्टूडेंट्स एंड अदर्स स्टडिंग विद ऑटमोस्ट सिंसियरिटी। क्लास में जो एटमॉस्फेयर बहुत ही सिंसियरिटी का होता है बिकॉज दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड ही वाज टीचिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द मीन्स डीप ऑफ दैट लैंग्वेज। ही वाज गोइंग टू द थ्रू एंड थ्रू। तो उन्होंने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, फिर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई, फिर बहुत सारे रूल्स उन्होंने बताए। तो टीचर वाज टीचिंग सिंसियरली एंड ही हैड अ पेशेंस ऑल्सो एंड अदर वर ऑल्सो स्टडिंग विद ऑटमोस्ट सिंसियरिटी। फ्रेंच वॉन्डर्स sarcastically if Prussians could force peasants to coup in German also। फ्रेंच जो है वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इतना ज़्यादा वो ऑफरेड था कि जो प्रसियन है क्या वो बर्ड्स की भी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। मतलब जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज के लिए इतने पॉजिटिव है, इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज ही वहाँ पर चलाएंगे क्योंकि उन्होंने फ्रेंच पीपल को वहाँ पर बैटल में लूज़ करा दिया, मतलब वो फ्रेंच पीपल लूज़ हो चुके हैं। तो अब वो उनके जो है कंट्रोल में आ चुके हैं। तो क्या वो यहाँ के बर्ड्स एनिमल्स की लैंग्वेज को भी चेंज कर देंगे? Hamel overcome with emotion could not speak and wrote on the blackboard long live France। हैमल जो है इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाए और सिर्फ उन्होंने लिख करके अपने कंट्री के लिए एक अफेक्शन दिखाया और उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस लंबे समय तक जिंदा रहे, मतलब वो उसकी दीर्घायु हो, फ्रांस में जो है जो चीज़ें थी वो वैसे ही रहें, कोई भी चेंज यहाँ पे ना होने पाए। ऐसी उन्होंने उन्होंने एक विश उन्होंने एक्सप्रेस किया ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I hope you understood all the point and if you would have any confusion then you will drop the message in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video.